अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम जुर्म में नकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाजरीन, इंसान का जब खून सफेद हो जाए तो बड़े से बड़ा जुल्म करने से भी गुरेज नहीं करता। एक ऐसा ही वाकया पेश आया डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा के इलाके कोट पिंडी दास में, जहां पर एक सगे ताए ने अपनी मासूम भतीजी यानी कि अपने छोटे भाई की 3 साला बेटी को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। आज के प्रोग्राम जुर्म में नकाब में हम इसी मासूम 3 साला ज़ैनब के साथ होने वाले जुल्म और जुर्म को बेनकाब करें। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं 3 साला मजलूम ज़ैनब के वालिद, वो ज़ैनब जो इस बात से अनजान थी कि उसका अपना सगा ताया उसके साथ जुल्म की इंतहा कर देगा। बात करते हैं इस मजलूम बाप से। सबसे पहले जी बड़ा अफसोस है हमें जो जुल्म हुआ आपके साथ, आपकी बेटी के साथ। ये झगड़ा कब से शुरू हुआ, क्या मामला था? झगड़ा साਡਾ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ 11,000 ਰੁਪਏ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਫ੍ਰਿਜ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰਿਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੋਟਰ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਨਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਫ੍ਰਿਜ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਬੱਤੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲਾ ਮੀਟਰ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ 11,000 ਰੁਪਏ, ਤੇ ਬਿੱਲ ਨਾ ਤਾਰਤਾ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ 11,000 ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਨਾ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਰਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਝਗੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਬੱਤੀ ਦੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਤੀਸਰਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, यानी उन्हें चौथा हिस्सा देता है तो ज्यादा बिल तुसी देता? ਹਾਂਜੀ। ठीक है। ਤੀਸਰਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਨਾ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਅੱਗੋਂ ਬਿੱਲ ਦਾ। 2 ਹਿੱਸੇ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤਾਰਦਾਗਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਸਤੀ ਤੂੰ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। नहीं अदो अद नहीं सी करदे तुसी? ਨਹੀਂ। वो ज्यादा बिल तुसी दिंदे सो घट हो दिंदा? अच्छा। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਤਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ 1500 2000 ਹੀ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਕਦੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਈ ਹੈ? ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਢੂੰਡਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਤਵਾਰ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ, 19 ਤਰੀਕ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੋਟ ਅਬਦੁਲ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੱਤੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 4 ਵਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ ਘਰੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਂ ਆਪਣੇ ਗਾਉਂ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ੈਨਬ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਹੋਣੀ ਬੱਚੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਵਾਲੇ, ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਬੱਚੀ ਘਰੇ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਧਰ। ਕਾਫੀ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਮ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜ਼ੈਨਬ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਵਾ। ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਫਿਰ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰਤੀ, ਸੁਬਾ 11:21 ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਗਾਉਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਹੈ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 15 ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ 12 ਵਜੇ। 15 ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੌਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ? ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸੁਬਾਹ ਨਾ FIR ਕਟਾ। ਚੌਂਕੀਆ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ FIR ਕਟਾ। FIR ਕਟਾਈ ਹੈ, ਤੇ FIR ਵੀ ਮੇਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ऑनलाइन हुई है। FIR भी नहीं ऑनलाइन हो। अब यहाँ पर जी एक चीज़ जो हमारे सिस्टम में जो मामलात हैं उनको बेहतर करने की ज़रूरत है। अब एक गरीब की बच्ची गुमती है और वो ढूंढने के लिए 15 पे कॉल करता है, तो ये रिस्पॉन्स है यहाँ पर। ये नहीं कि हम सारे जो थाने हैं, ये सारे इलाकों की पुलिस इस तरह करती है, लेकिन जहाँ कहीं पर ऐसी जो कमज़ोरी नज़र आती है या कुताही नज़र आती है किसी भी डिपार्टमेंट की, तो हम अपने इस प्रोग्राम में हाईलाइट भी करते हैं। तो हमारी गुजारिश है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा से, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब से, कि इनका विज़न है कि हमेशा मज़लूम को, गरीब को फ़ौरी इंसाफ मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक मज़लूम शख्स जिसकी बेटी को उसके सगे भाई ने कत्ल कर दिया, वो बता रहा है कि इसने 15 पे कॉल की, तो उस वक्त जो एक टाइम लिमिट होती है उसमें रिस्पॉन्ड करना बहुत ज़रूरी होता है पुलिस का। लेकिन 15 पे कॉल पर कदों आए जी तुहाडे कोल?
ਪੁਲਿਸ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਉਸ ਆਈ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ। ਕੀਤੀਆਂ 155 ਤੇ? 4 ਤੋਂ 5 ਕਾਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। सगे ताए ने अपनी 3.5 साल भतीजी को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। अब जाहिर ये अंधा कत्ल था, उस शख्स पर किसी का शक नहीं जा सकता था, लेकिन इलाके की मौजूद शख्सियत हैं, आज़िम हैं राना परवेज साहब, उनसे करेंगे। उन्होंने उस गरीब बच्ची के जो वालिद हैं, वो भी बड़ा एक गरीब इंसान है बेचारा, उसको अंदाज़ा नहीं था कि उसका सगा भाई इस हद तक जा सकता है और इतना बड़ा जुल्म कर सकता है उसके साथ। लेकिन इन्होंने उस अपने इलाके के शख्स की बड़ी मदद की और असल कातिल तक पहुंचे। बात करते हैं इनसे इस सारे मामले के हवाले से, किस तरह उन्होंने ये केस सॉल्व किया और किस तरह उस गरीब की मदद की। तो ये मामला था क्या, क्यों इस हद तक बात पहुंची और आप असल कातिल तक कैसे पहुंचे? और बिजली की बिल की वजह से लड़ाई हुई थी, तो उसमें शदीद लड़ाई में ये एक दूसरे के दस्तों गिरेबान हुए, लेकिन मोहल्लेदारों ने इनको छुड़ा दिया, वो भी एक फैक्टर था। और दूसरा फैक्टर जो मेजर फैक्टर था कि हर बंदे के जहन में ये ख्याल था कि बच्ची के साथ कोई ज़्यादती का वाक़या हुआ है और ज़्यादती के बाद उसको कत्ल करके ना उसकी लाश को डिस्पोज कर दिया है। तो इस भाई की तरफ ना किसी का भी शक नहीं जा रहा था। वो चूँकि हम लोकल हैं तो यहाँ से लोगों के साथ अच्छे राब्ते में हैं, तो लोगों ने हमने सोशल मीडिया पे पोस्ट भी लगाई। वो पोस्ट देकर कई दोस्तों ने हमारे साथ रब्ता किया और हमें कुछ इसके ना मतलब कुछ बातें बताई, और उन बातों को लेकर हम जब सुबह इनके पास गए तो वहाँ कुछ चीज़ें हमने शेयर की और इसके साथ भी बातें की, तो हमारा थोड़ा शक इसके ऊपर ज़्यादा मजबूत होना शुरू हो गया, इसके बड़े भाई पे। फिर हमने कोशिश की और इसके ना फुटप्रिंट के लिए हमने सीसीटीवी कैमरास को ट्रैक किया, उसकी फ़ोटोज़ जो है ना वो लेके हमने इसको आइडेंटिफाई किया। फिर वो जो बातें लोगों ने हमें बताई थी वो उनकी तस्दीक की। ये हुआ ऐसे था कि ये बच्ची को वरगला के ज़िंदा बच्ची को अपने साथ ये ले गया था। 4.5 किलोमीटर है यहाँ से आगे शाम के गाँव है, शाम के गाँव के साथ एक नाला गुजरता है, नाले के पास से ये ले गया है। ज़िंदा बच्ची को इसने वो जो डे का पुल है उसके ऊपर से फेंका है नाले में, और उसकी जो डेप्थ है वो तकरीबन 50 to 55 फीट थी, वहाँ से जो ऊंचाई थी पुल से वो ज़मीन की। इस वक्त जी टीम जुर्म में नकाब मौजूद है कोट पिंडी दास में। इस इलाके में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसमें इंसान शायद आम इंसान यकीन नहीं कर सकता कि सगे भाई ने अपने छोटे भाई की मासूम 3 साला बेटी, जिसका कोई कुछ कसूर नहीं है, उसको पुल से नीचे गंदे नाले में फेंक दिया। इलाके के लोग इस हवाले से क्या कहेंगे, उनसे हम बात करते हैं। ये सर बताइएगा। ये देखिए ना, घर का मामला है और ताया अबू ने ये क्या, और जैसे उसने बताया है कि वो खुद ढूंढता रहे तो किसी का शक भी नहीं गया। तो 2-3 कड़ियाँ हमने भी नोटिस की, हम मशावरत में रहे हैं, खालिद भाट साहब, राना परवेज़ साहब, हम फिर आपस में ये मशवरा किया है कि ये इसका फैमिली मेम्बर इन्वॉल्व हो सकता है। रात को 2 बजे फिर राना परवेज़ ने गाड़ी भेजी है, इसके भाई को सोया हुआ था, ये भी साथ आया था, इसका वालिद भी लड़की का, वो उसको उधर लेके गए हैं। तो राना परवेज़ साहब ने उसे प्रेशराइज़ किया है, उससे 2-3 काउंटर क्वेश्चन किए हैं, तो वो थोड़ा सा ना डर गया, हड़बड़ा गया, तो वो खुद ही मान गया, सिलेंडर कर गया भी मैंने इस तरह किया है मुझसे। वो फिर आपको पता है जब कोई बंदा मान जाए तो मुझे ख्वाब आते रहे हैं, मुझे जादू वो तो हो अपने गया, को बचाने की कोशिश हाँ कर जी, रहा था। डेफिनेटली इसी तरह उसने किया जी, ख्वाब आते रहे हैं, डराता है, मुझे किसी ने डराया है, इसको ले जाओ। पुलिस आई, फिर उन्होंने क्या पर्चा करो, 4 दिन बाद थोड़ा फिर FIR हुई, उस बाद फिर आगे की मामला चला। FIR ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਲਿਆਕ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਘਰ ਹਿੱਟ ਖਵਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਸਗੇ ਭਰਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਵਕੂਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੋ, ਇਹ ਨਾਲ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ 2 ਦੋਸਤ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰਦਾ ਟੁਰਦਾ ਸੀ ਮਹੱਲੇ ਚ, ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ, ਘਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਨਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਘਰ ਆਇਆ ਹੈ ਮੇਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਸੱਟ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਾਮ ਕੇ ਪਿੰਡ गंदे नाले च ना एक बच्ची है, लाश पई है। अगर तू पहचान लेगा, तुसी पहचान लोगे तो
ਕੋਟ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਸੀ ਬੋਲਣ ਦੇ। ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਗੁਆਚੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਲਦੀ ਆਇਓ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਿਆ ਵਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਾਲ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਕੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੇ। ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਪਛਾਣੀ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰਨ ਰਾਣਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵੀ, ਰਾਣਾ ਯਾਸੀਨ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SHO ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਸੀ 15 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਲਿਆਕਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਰਾਣਾ ਪਰਵੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਆਈਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਰੋ ਟੀਮਾਂ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਫੋਨ ਆਏ, ਕੋਈ ਟੀਮਾਂ ਆਈਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਉੱਥੋਂ ਗੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਨਾਲੇ ਦੇ। ਟੀਮ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਢਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਟੀਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਮੇਰੇ ਕਿਹਾ? ਉਸ ਭਾਈ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬਹਿਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਭਾਈ ਨੇ ਸੱਟੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਕੱਢਣ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਨਾਲ ਕੱਢਣ ਗਿਆ, ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਕੱਢਿਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਨਹੀਂ। अच्छा, तो 4 दिन तक ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉੱਥੇ ਪਈ ਰਹੀ? ਹਾਂਜੀ चौथे दिन लभी? ਹਾਂਜੀ। अब यहाँ पर ये मामलात हैं। अब देखिए कि सगा भाई, और ये भाई उस पर शक भी नहीं कर रहा, लड़ाई हुई थी माजी में बिजली के बिल पर, मामलात ख़राब हुए, उसी सगे भाई ने 4 महीने तक अपने भाई का जो पानी घर का बंद किए रखा, बिजली काटी रखी, और वो ये बताते हुए आंखों में आंसू थे और आवाज़ में लर्जाहट थी, दर्द था इस शख्स के कि एक सगा भाई इस लेवल तक जा सकता है कि इसने पहले इसको तड़पाता रहा, फिर जब इसने अपने मीटर लगा लिया, सारा कुछ हो गया काम, जब देख लिया तो फिर कहा जी हाँ जी मैं तेरे नाल सुलह करना और माफ़ कर दे, सारे मामलात हो गए। और उसके बाद उस सारे मामला ख़त्म होने तो बाद कोई दोबारा कोई ऐसा था मसला नहीं होया? नहीं। अच्छा, उस सारे मामले के बाद फिर उसने इस सगे भाई की बेटी को जाकर पुल से नीचे गंदे नाले में फेंक दिया और खुद ढूंढ रहा है, फिर निकाल भी खुद रहा है। सगे ताए ने अपनी 3.5 साला भतीजी को पुल से नीचे फेंक दिया नाले के अंदर, जिंदा को उसने नाले में के नीचे फेंक दिया। तो जब हमने CCTV से ट्रैक किया और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, ये फेंक के ये हमारे गांव के ही बंदे हैं, उनके साथ ये मोटरसाइकिल पे बैठ के आया वापस। वो खबरें भी हमारे पास थी। तो फिर ये सब चीज़ों को हमने इकट्ठा करके फिर हमने इसको 1-1:30 बजे रात को इसको घर से बुलवाया और इसको ब्रेक किया। तो ये इसने फिर हमें कहा कि जी आप खामोश रहे, मैं ही सारी स्टोरी सुनाता हूँ। तो इसने बड़ी तफसील क्या के साथ बताया सर, जो उसके अल्फाज थे? उसके अल्फाज ये थे कि मैं बच्ची को लेके जब जा रहा था तो मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा था कि मैं इसको क्या करूँ, इसको मारूँ या ना मारूँ। और कभी कहता है मेरे कदम आगे जा रहे थे, कभी कहता मेरे कदम पीछे जा रहे थे, फिर कहता है कि मुझे बस पता नहीं क्या हो गया, मेरे आवाज़ पे किसी चीज़ का कब्जा हो गया। तो अच्छा, मैं ये तो अपने आप को बचाने के लिए कह अच्छा, ये बताइए कि ये नहीं बताया कि वजह क्या थी, क्यों इतना गुस्सा आ गया उसको, उसके बकौल उसने क्यों मारा उस बच्ची को? असल में इसमें ना 2-3 फैक्टर थे। एक इनकी लड़ाई थी, एक ये बड़ा भाई है, इसकी 5 बेटियां हैं, इसका बेटा कोई नहीं है। ये अपने भाई से बेटा भी मांगता था, जो इसने वादा किया था, लेकिन घर की मजबूरी की वजह से, अपनी बीवी की मजबूरी की वजह से ये अपने भाई को अपना बेटा नहीं दे सका। तो वो भी एक उसके अंदर एक रंजिश थी। और तीसरी बात ये थी कि अपना उसकी चूँकि 5 बेटियां थी, वो थोड़ा डेस्परेट था, थोड़ा आउट ऑफ माइंड था। अच्छा, उस दिन उन्नी देर तक तो शक नहीं है? नहीं, उस बाद बच्ची कड़ी, फिर बात किधर ले गए? उस तो बाद बच्ची कड्डी ते लै गए अस्पताल पुलिस वाले। उन्होंने उत्थे रिपोर्ट कढ़ाई, उन्होंने कहा 2-3 दिन बाद रिपोर्ट मिलेगी, फिर असी एक्शन लवांगे ज़्यादातर। CCTV वाले भी आ गए मौके ते, उन्होंने कहा सुबह से इंक्वायरी करा के। CCTV वाले भी इंक्वायरी करते पे ने, ते राणा परवेज साहब भी आ गए उत्थे भोरे ते। उन्होंने मेरा नंबर लिया, मेरे नाल मैनू गल गुल पूछा है कि बात सी, की झगड़ा सी तुहाडा। ये राणा परवेज साहब के हवाले से बता दूं कि ये इलाके की मौजूद शख्सियत हैं, साबिक नाज़िम भी रह चुके हैं इस इलाके में, और उन्होंने इस मजलूम शख्स की बड़ी मदद की है पूरे केस में, थ्रू जो है इन्वेस्टिगेशन से लेकर आगे मामला तक सारे मामला उन्होंने देखे हैं। तो मैं नाज़रीन को भी बता दूं कि एक अच्छा शहरी
और इलाके का एक मोअज़्ज़ज़ जो शहरी होने का सबूत उन्होंने दिया, इस गरीब की मदद की, वो शख्स उनका ये नाम बता रहे हैं। अच्छा, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਣਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਾਂ। ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਐਸਨ ਗਾਰਡਨ ਆਇਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਲੰਘ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਨਾ USB ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲੈ ਆਇਆ ਐਸਨ ਗਾਰਡਨ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਵੀਡੀਓ ਚੈੱਕ ਕਰ। ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਅਸੀਂ 5-6 ਘੰਟੇ ਵੀਡੀਓ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਮਰੇ ਉੱਥੇ USBਆਂ ਲਾ ਕੇ। ਉਸ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਆਇਆ। CCTV ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਮਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸੀ ਨਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਰਾਣਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਹਰਾਂ ਨੇ ਲੱਭਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ CCTV ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। CCTV ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ज़ाहिर है ये जी अगेन वही बात आ जाती, पहले भी ये बात ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਅਸੀਂ 3-4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ। नहीं, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਗਾ ਭਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਰਾ ਨੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸੱਟਿਆ ਤੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਹਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ 19 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 5 ਤੋਂ 6 ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਇਹ ਨਾ ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵਕੂਤ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਦੀਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੰਮ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਲਾਈਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਲਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਸੀਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਰਾ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਖਾਬ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਖਾਬ 'ਚ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭਤੀਜੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਨਾ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਹਰਾਂ ਭਾਜੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਹਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਦਿਨ ਬੱਚੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਗਾਇਬ ਹੋਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਮ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੁੱਟ ਕੇ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਰਲਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਰਲਾਇਆ ਬਿਆਨ ਰਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭੇਜਿਆ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। सगे भाई ने अपने छोटे भाई की बेटी को जुल्म का निशाना बनाया, उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया। एक भाई की बेटी की जान का दुश्मन निकला, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखें, ये कोट पिंडी दास की तारीख का ना बदतरीन सानिया था, जिसे कोई भी ये हकीकत कोई समझ नहीं था रहा। और मैंने इसे रिपोर्ट किया सबसे पहले मकामी साफ़ी होने की सीए से। ये पूरा गांव जो था वो यकजात था इस मामले के हवाले से, और सबको अब यही है, पूरा गांव हमारा गमो गुस्से में है और यही चाहता है कि इसको कड़ी से कड़ी और इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए। और ये बड़ी अच्छी बात है, और हम यही समझते हैं कि हमारे इलाके में आइंदा भी कोई ऐसा वाक़या अल्लाह ना करे हो। लेकिन जिस तरह से इन्होंने काम किया, जद्दोजहद किया, कोशिश किया, मज़लूम के साथ खड़े हुए हैं, तो मैं समझता हूँ कि हर जो इलाके में हमारे रहने वाले शहरी हैं उनको मकामी सतह पर जब इस तरीके से इंसाफ मिलेगा तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। भाई का दुश्मन निकला जी, क्या कुछ सोच सकता है कि ऐसा हो सकता है कि सगा भाई ताया जो है बच्ची का 3 साल बच्ची को मार डालेगा? इससे बड़ा जुल्म कोई हो ही नहीं सकता जितना बड़ा जुल्म ये कोट पिंडी दास में हुआ है। इस जुल्म को देखकर और सुनकर कोट पिंडी दास में खौफ और हंस पैदा हो गया। में हसद का फैक्टर भी आ सकता है, गुस्से का, लड़ाई झगड़े का भी। असल बिजली के बिल की वजह से भी झगड़ा हुआ, घर की दीवार का भी कोई मामला चल रहा था इनका कोई? घर की दीवार का वो मामला इनका था लेकिन वो सॉल्व हो गया था। ठीक है, वो मोहल्लेदारों ने, लोगों ने बैठ के इसको सॉल्व कर दिया था। ठीक है। तो ज़्यादातर ये बस असद ही है, मैं तो इसे असद ही कह सकता हूँ। बच्ची बहुत प्यारी थी, 3 साल की मासूम ज़ैनब। उसको देख के जब उसकी लाश मिली है, हम सारी रात सो नहीं सके। तो हमने अपने दिल में ये वादा किया हुआ था कि यार जो भी हो जाए ना, जिस हद तक भी जाना पड़े, इस मजलूम को हम इंसाफ दिलाएंगे। बड़ी खूबसूरत बात की जी। राना प्रवेश साहब ने ये बता रहे हैं कि ज़ैनब वो थी जिसके साथ कसूर में जुल्म हुआ। हवा की बेटी को ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया, और उसके बाद भी इस तरह के बहुत सारे वाक़यात सामने आते हैं। अल्लाह ताला कभी भी किसी की बेटी के साथ, किसी के बच्चे के साथ ऐसा जुल्म ना हो, वजह कुछ भी हो। एक मासूम बच्ची का क्या कसूर था?
और जैसे कि ये बता रहे हैं, इन्होंने बताया कि उसने जिंदा बच्ची को पुल से नीचे फेंका है और जो गहराई बनती है वो पुल से लेकर नीचे ज़मीन तक वो 50-55 फीट बनती है। तो बहरहाल हम तो यही चाहेंगे कि कानून के मुताबिक उस मजलूम के इंसाफ मिले। और यहाँ पर हम अप्रिशिएट करेंगे कि अगर हर कोई जो बाअसर शख्सियत है, जो थोड़ा ज़ई शोर रखते हैं, लोग जो थोड़ी हिम्मत रखते हैं, वो इसी तरह जैसा कि राना परवेज़ इलाके के मौजूद शख्सियत, अगर ये जिस तरह इन्होंने एक गरीब की मदद की, ऐसे सब मदद करना शुरू कर दें तो मामलात जो है वो बहुत बेहतर हो सकते हैं। हर चीज़ ही डिपार्टमेंट्स पर, पुलिस डिपार्टमेंट पर या इदारों पर जो है वो भी ज़रा उनका फ़र्ज़ है, वो भी काम करते हैं इस हवाले से, लेकिन ख़ुद से एक अच्छा शहरी होने के हवाले से हमें कोशिश करनी चाहिए। जब सुलह होगी इसी तो फिर हरकतों ने क्यों की थी, कोई पता लगा या उन्हें दस है कि क्यों मारा हमें? नहीं, फिर नहीं पता लगा उन्हें क्यों है हरकत एड्डी वड्डी घर छड्डी। कोई उस तो बाद लड़ाई झगड़ा भी नहीं सी आया, कोई नहीं सी आया। उन्हें आप भी नहीं दसिया कि मैं क्यों मारिया उन्होंने? नहीं, कहना मैनू पता नहीं लगा मेरे को होया की है। अच्छा, यानी कि लेकिन वो देनी चाहिए मसला देने कोई ना कोई गल होनी है ना। सारे बच्ची तो नाल प्यार करदी सी ताया समझ के ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਹਮ ਨਾਲ ਘਰ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਤੇ तो ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, बच्चे का इंसाफ चाहिए। हाँ जी। ऐसे शख्स जो इस मजलूम शख्स का जो भाई है, जो बड़ा भाई है, उसने बड़ा भाई क्या, उसने तो इंसान होने का भी सबूत नहीं दिया कि एक मासूम बच्ची 3 साल उसकी उम्र थी और पहले झगड़ा माजी में होता रहा, भाई को ही तकलीफ पहुंचाता रहा और उसके बाद जो दर्द भाई को उसने दे दिया, जो जख्म दे दिया, वो सारी ज़िंदगी इसका नहीं भरेगा। उस मासूम बच्ची को बड़ी बेरहमी से उस शख्स ने कत्ल कर दिया, मार दिया। और जब ये लोग ऐसा जुल्म कर बैठते हैं उसके बाद फिर इस तरह की कहानियां सुनाना शुरू कर देते हैं जी कि मेरे दिमाग में पता नहीं कुछ चीज़ हावी हो गई थी। जो मामला था 4 किलोमीटर चल कर वो बच्ची को लेकर जाता रहा है, उस वक्त तक उसको अकल नहीं आई और फिर बच्ची को मार के आ गया, फेंक के आ गया है। हो सकता है उस वक्त चलो उसको वक्ती तौर पर होता, बच्ची ज़ख्मी होती, जाके बचा लेता उसको, लेकिन 4 दिन तक उस मासूम बच्ची की लाश जो है उस गंदे नाले में पड़ी रही। अल्लाह ताला ये वक्त किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। बहरहाल उस जालिम शख्स का पर्दाफाश हुआ और अब हमारी यही गुजारिश है, इस भाई की भी यही गुजारिश है कि इस मासूम बच्ची का जो इंसाफ जो है वो इन लोगों को मिलना चाहिए और जिस जालिम ने जो जुल्म किया है उसको कानून के मुताबिक इबरत का निशान बनाना चाहिए। और आज के इस प्रोग्राम के ज़रिए से अपने तमाम नाज़रीन को मैं ज़रूर पैगाम दूंगा कि खुदा रहा अपने बच्चों की निगरानी खुद करें। कभी अब वो दौर नहीं रहा कि हम हर किसी पर एतमाद कर सकें। एक ज़माना था कि लोग जो है अपने हमसायों के घर बच्चे छोड़ जाया करते थे, अब अपने सगों पे भी एतबार करें। जो अच्छे लोग हैं उनको भी ऐसे जो लोग हैं उनका नाम ख़राब करते हैं। जो घर एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं, ऐसे लोगों की वजह से उन लोगों के ज़हन में वहम आ जाते हैं। बहरहाल ऐसे मामलात से अल्लाह ताला सबको बचाए। और एक और चीज़ कि अगर अच्छा शहरी, अगर आपके पास कुछ वसाइल हैं, जिसका एक जिक्र कर रहे हैं ये शख्स मजलूम आदमी राना परवेज़ इलाके के जो मौजूद शख्सियत है, अगर वो मदद ना करते शायद ये अब तक ये धक्का ही खा रहा होता। शायद CCD वाले शायद उसको इन्वेस्टिगेट कर लेते या शायद पुलिस भी इन्वेस्टिगेट कर लेती, लेकिन जितना जल्दी ये मामला सॉर्ट आउट हुआ इसी वजह से कि एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते एक गरीब की मदद की गई। इसलिए अगर आप बाअसर हैं या आपके पास कुछ वसाइल हैं तो आपके इर्द गिर्द जो गरीब लोग हैं, जब मजलूम हैं या जो आपकी मदद के तलबगार हैं, उनकी मदद भी कीजिए ताकि इस तरह के मामलात जो हैं वो हल किए जा सकें। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए। अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।